Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, the atmosphere. The gaseous envelope covering the earth is called atmosphere. It is held around the earth by gravity. Different gases in different concentrations are found in it. The atmosphere sends back most of the sun's rays back into space during the day. It does not allow this heat of the earth to escape easily during the night. So days do not become too hot and nights too cold. So plants and animals can survive on earth. There is no atmosphere on the moon. It is too hot during the day and too cold at night. So it has no plants or animals. देखिए एटमॉस्फेयर आपका क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर. ओके और इसको अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको होल्ड करके रखती है. डिफरेंट गैसेस जो है वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे पाए जाते हैं. राइट अब एटमॉस्फेयर क्या करता है कि ज़्यादातर जो सन की रेज होती है उनको वापस स्पेस में भेज देता है डे टाइम पे. बट नाइट में क्या होता है कि ये अर्थ की हीट को स्केप नहीं होने देता. इसीलिए जो आपके डेज हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते और जो आपकी नाइट्स हैं वो ज़्यादा कोल्ड नहीं होती. तो इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है. बट आप मून की देखें, मून की बात करें तो मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी. इसीलिए वहाँ पे कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स नहीं है. Layers of atmosphere. The atmosphere is made up of different vertical layers. The layer closest to the earth is called troposphere. It extends up to a height of 15 kilometers from the surface of the earth. Its bottom is hot but the top is very cold. All the weather phenomena take place in this layer only. All living organisms operate in this layer. Aeroplanes also fly in it. अच्छा देखिए एटमॉस्फेयर आपकी डिफरेंट लेयर से बना है. राइट तो जो क्लोजेस्ट लेयर है वो आपकी है ट्रोपोस्फेयर. ये आपकी 15 किलोमीटर्स की हाइट तक आपका एक्सटेंडेड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब इसका जो बॉटम है वो हॉट है बट टॉप इसका वेरी कोल्ड. तो जितने भी आपके वेदर फिनोमिनन है वो इसी लेयर में होते हैं. एरोप्लेन्स जो होते हैं वो इसी आपकी लेयर पे फ्लाई करते हैं. एयर मास एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर टू अबाउट 50 किलोमीटर फॉर्म्स द सेकेंड लेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. Ozone layer is found at the bottom of the stratosphere which covers the entire earth like an umbrella. Therefore, it is called the ozone umbrella. Ozone is a form of oxygen. It protects us from the harmful ultraviolet rays coming from the sun. Beyond the stratosphere are three layers in the succession called the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. The last name gives way to the space. अच्छा देखिए आपकी फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर. ओके और यहाँ पे आपकी ओजोन गैस भी पाई जाती है. ओके तो ये पूरे अर्थ को आपका जो ओजोन लेयर है एक अम्ब्रेला की तरह कवर करता है. एंड ओजोन गैस का फंक्शन क्या है? ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाते हैं. अब स्ट्रेटोस्फेयर के बियॉन्ड आपकी 3 और लेयर्स है जो है आपकी मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. राइट एयर. The gaseous mixture of the troposphere is called air. Air cannot be seen by eyes, but we can feel it when it blows. We live at the bottom of this invisible ocean of air. Air is mainly composed of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and some other gases in minute quantities. देखिए आपका एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. राइट एयर आप देख नहीं सकते बट हम इसे फील कर सकते हैं. अब देखिए एयर का कॉम्पोजिशन क्या है. इसमें आपका देखिए 78.0% आपका नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड इसके साथ साथ आपके वाटर वेपर्स भी होते हैं. राइट और दूसरी गैसेस भी होती हैं. 20.94% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन. ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. It is used to burn food inside their bodies to release energy. We can burn things like candle or fuel only in the presence of oxygen. 78.08% of the air is nitrogen. Animals and plants need it in their bodies as protein. They cannot take it directly from air. Some bacteria and lightning change it into consumable form for plants. Animals take this nitrogen from plants. अब देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज है आपका 20.94. राइट एंड ऑक्सीजन आपको पता है कि कितनी यूज़फुल है. हम ब्रीदिंग करते हैं इसमें. इसके अलावा बर्निंग में भी जो आपका ऑक्सीजन ही हमें हेल्प करती है. नाइट्रोजन का परसेंटेज इतना है. अब देखिए एनिमल्स एंड प्लांट्स को आपकी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है बट ये डायरेक्टली इसे एयर से नहीं लेते. तो आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये जो लाइटनिंग है ये प्रोटीन को क्या करते हैं वो कंज्यूमेबल फॉर्म में चेंज करते हैं. एयर कंटेन्स 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड.
Green plants make their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Animals breathe in oxygen and gives out carbon dioxide. Nature maintains the balance of oxygen and carbon dioxide in the air. अच्छा अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है 0.03%. ओके, अब आपको पता है ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें अपना खाना बनाना होता है, और बदले में वो क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, और इस तरह से जो बैलेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेंटेन रहता है. Other gases like neon and argon are about 0.95% in the air. These gases are used to produce orange glowing electric tube lights which are displayed in advertisements. Such signs are called neon signs. In addition to these gases, air also contains variable amount of water vapor. Amount of water vapor contained in the air is called humidity. Many of the weather conditions depend upon water vapor. Excess of water vapor in the air makes it humid. Dust, smoke, bacteria, virus and pollen particles are also found in the air in small and variable quantities. अच्छा, बाकी गैसेस की बात करें तो देखिए नियॉन एंड आर्गन ये आपकी है 0.95%, राइट. इनको यूज़ किया जाता है आपके इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट्स में एक ऑरेंज ग्लो प्रोड्यूस करने के लिए. आपने कई बार कुछ साइंस भी देखे होंगे जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आपके नियॉन साइंस होते हैं. इसके अलावा एयर में आपके वाटर वेपर भी होता है. ओके, वाटर वेपर जो आपका जिस अमाउंट होता है एयर में दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. और बहुत सारी जो वेदर कंडीशंस है वो डिपेंड करती हैं आपकी कि कितना वाटर वेपर है. अगर एक्सेस होगा वाटर वेपर एयर में तो इससे क्या होगा कि वेदर ह्यूमिड हो जाता है. इसके अलावा डस्ट, स्मोक, बैक्टीरिया, वायरस और पोलन पार्टिकल्स भी आपके एयर में पाए जाते हैं. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एयर. You have learned that air occupies a space, so it is used to inflate balloons, tires, tubes, football bladders and pillows. Air आपको पता है it's a matter, है ना, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो बहुत सारी चीज़ों को हम इन्फ्लेट करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं, है ना, राइट. जैसे कि ये सारी चीज़ें आपकी moving air has force and it can push and pull things. You know that very well. Air exerts pressure. You also know that air has weight. Things that have weight exert pressure. If you hold a kilogram of weight on the palm of your hand, you can feel its pressure. In the same way, an air column also exerts a downward pressure. Over us, it exerts a pressure of 1 kilogram per square centimeter. It is called atmospheric pressure. Our blood pressure and inhaled air inside our body balances the air pressure आउटसाइड. अच्छा देखिए, एयर क्योंकि मैटर है तो ऑफकोर्स इट हैज़ वेट, तो जिन चीज़ों का वेट होता है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं, राइट. तो इस जैसे कि आप 1 किलोग्राम वेट को अपने पाम में अगर आप रखेंगे तो आपको उसका प्रेशर फील होगा ना, तो इसी तरह से जो एयर कॉलम है वो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर, बट डाउनवर्ड प्रेशर. तो ओवर अस क्या है कि एक प्रेशर ये एक्सर्ट करती है ऑफ 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारा जो ब्लड प्रेशर है या जो इनहेल्ड एयर है हमारी बॉडी के इनसाइड, वो क्या करते हैं, जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको बैलेंस करके रखते हैं. एक्सपेरिमेंट. द एयर एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड प्रेशर एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. फिल अ ग्लास विद वाटर अप टू द ब्रिम. There should be no air bubbles in the glass. Cover the top of the glass with a thin cardboard. Hold the glass with one hand and press the cardboard with another. Now turn the glass upside down. Keep holding the cardboard. Remove your hand gently from the cardboard. The cardboard will not fall. How does it bear the weight of water? It is the air which presses upon the cardboard. अच्छा देखिए, एक्सपेरिमेंट करना है कि जो एयर है वो डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करती है और इसको हर डायरेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. आपने एक ग्लास ऑफ वाटर को बिल्कुल फुल कर देना उसके ब्रिम तक. ओके, उस ग्लास में एयर बबल्स नहीं होने चाहिए. अब आपने ग्लास को कवर कर देना इस तरह से एक पतली से कार्डबोर्ड से. ओके, अब अपने ग्लास को होल्ड करना एक हाथ के साथ और कार्डबोर्ड को प्रेस करना है दूसरे के साथ. फिर आप क्या करेंगे कि उसको टर्न कर देंगे अपसाइड डाउन, राइट. फिर आपने क्या करना है, आपने आप जो कार्डबोर्ड है आप उसको होल्ड करके रखेंगे. इसके बाद आपने अपना हैंड जो है वो जेंटली रिमूव करना है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. यहाँ पे हैंड नहीं है. अब देखेंगे आपकी जो कार्डबोर्ड है ना वो गिरेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि एयर जो है उसको प्रेस कर रही है कार्डबोर्ड को, राइट. The air inside the glass exerts a downward pressure on the cardboard while the outside air exerts an upward pressure on it. As these two forces are equal, they cancel each other out. So the cardboard does not fall. देखिए क्या हो गया कि जो ग्लास के अंदर एयर है वो डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगी एंड जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को क्या होगा कि जो बाहर से जो एयर है वो उस पर
आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये जो दो फोर्सेज है ये इक्वल हो जाएंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए जो कार्डबोर्ड है वो नीचे नहीं गिरेगा। मूविंग ऑफ लिक्विड बाय एयर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर पुशेस लिक्विड्स टू मूव अपवर्ड। चलिए इसे समझते हैं हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू। Take any cold drink in a glass, put a straw in it and suck air out of the straw. It makes the air pressure inside the straw less than the air pressure outside. The outside air pressure forces the cold drink to go up through straw into your mouth. आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप जूसेस पीते हैं, आप स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, राइट? जब आप स्ट्रॉ में सक करते हैं तो आप जूस को सक करते हैं तो कैसे आता है, अपवर्ड आता है। तो ऐसा क्यों होता है ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। ओके, वो लेस देन हो जाता है किससे, जो आपका बाहर प्रेशर है, और इससे क्या होता है कि जो आउटसाइड एयर प्रेशर है वो क्या करता है, वो कोल्ड ड्रिंक को फोर्स करता है कि वो ऊपर जाए स्ट्रॉ में, एंड देन इट गोज टू योर माउथ। इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग बाय एयर प्रेशर। Number 1, fountain pen. It has a rubber tube inside which is pressed to force the air out. Air pressure on the ink outside pushes the ink into the tube. I'm sure आप सभी ने इंक पेन्स यूज़ किए होंगे, तो इसमें एक रबर ट्यूब होता है आपके इनसाइड में, ओके, विच इज़ प्रेस्ड टू फोर्स द एयर आउट। अब क्या होगा कि जो एयर प्रेशर होगा इंक की आउटसाइड, वो इंक को पुश करेंगे इनटू द ट्यूब। Number 2, syringe. When the plunger is pushed inside, the air inside is forced out. When the plunger is pulled out, the air pressure pushes the medicine into the empty space. A color pump also works in the same way. Okay, आपने syringe देखा होगा। syringe से जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें से लिक्विड मेडिसिन डालते हैं, राइट? तो क्या कहते हैं, जब उसको पुश किया जाता है तो जो एयर इनसाइड होती है इज फोर्स्ड आउट, और जब उसको पुल किया जाता है तो जो एयर प्रेशर होता है वो क्या करता है, वो मेडिसिन को पुश करता है कि वो एम्प्टी स्पेस में चले जाए। Number 3, dropper. On pressing the rubber bulb, air is pushed out which escapes out through the liquid as bubbles. As the bulb is released, air pressure forces the liquid to enter the dropper. आपने ड्रॉपर भी देखे होंगे, है ना? जब उसको प्रेस किया जाता है तो क्या होता है कि जो एयर है वो आपकी स्केप आउट हो जाती है, ओके, एंड जब बल्ब को रिलीज किया जाता है, रबर बल्ब को, तो क्या होता है कि एयर प्रेशर फोर्स करता है लिक्विड को कि वो उस ड्रॉपर के अंदर एंटर करे। Number 4, lift pump or water pump. Water pump is used to lift water from a well or to pump out groundwater. It is a cylinder with a tight fitting piston. This piston is attached to a handle. The pump has 2 valves, one foot valve and other a piston valve. Both open upwards only. अच्छा देखिए क्या होता है आपका वाटर पंप को यूज़ किस लिए करते हैं हम, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, या तो वेल से या फिर ग्राउंड वाटर को। तो इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें टाइट फिटिंग पिस्टन होती है। ये पिस्टन आपके हैंडल के साथ अटैच्ड होती है। अब पंप के 2 वॉल्व्स होते हैं, एक होता है आपका फुट वॉल्व एंड दूसरा होता है आपका पिस्टन वॉल्व, एंड दोनों ही आपके ओपन होते हैं अपवर्ड्स ओनली। इन पोजिशन 1 बोथ द वॉल्व्स आर क्लोज्ड। दिस पोजिशन देयर आर 2 वॉल्व्स जिनकी हमने बात की थी, वॉल्व 1 एंड वॉल्व 2। इसमें देखिए आपके दोनों ही वॉल्व आपके क्या हैं, क्लोज्ड है। On moving the handle downward, the piston moves upward. The air pressure inside the pump is reduced. The air pressure acts upon the water outside and the foot valve opens to allow the water to rush above the valve. अब second position में क्या हुआ कि इसके हैंडल को नीचे किया गया, राइट? अब नीचे किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव हुआ, तो जो एयर प्रेशर है पंप के अंदर वो रिड्यूस हो गया। फिर ये जो एयर प्रेशर है ये वाटर पे एक्ट करेगी आउटसाइड, एंड जो फुट वॉल्व है आपका ओपन होके वाटर को अलाउ करेगा कि वो वॉल्व से ऊपर जाए। When the handle is moved upwards, the piston moves downwards. Water closes the foot valve so it cannot go back. The pressure of water opens the piston valve upward and it rises up over the piston. अब इसके बाद क्या होगा कि जब आप हैंडल को अपवर्ड मूव करेंगे तो जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड जाएगा, ओके, एंड वाटर जो है वो फुट वॉल्व को क्लोज कर देगा जिससे कि वापस ना जा पाए। तो जो प्रेशर है वाटर का वो क्या करता है, पिस्टन को ओपन करेगा, पिस्टन वॉल्व को ओपन करेगा अपवर्ड, एंड देन इट राइजेस अप ओवर द पिस्टन। On moving the handle downwards again, the piston moves upwards, its valve closes and it pushes the water above it to let it out through the spout. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हैंडल को डाउनवर्ड करेंगे फिर से, तो पिस्टन क्या करेगा, वो अपवर्ड मूव करेगा, इसका वॉल्व क्लोज होगा, ये वाटर को पुश करेगा, और उसके बाद ये जो स्पाउट है इससे वाटर आपका
बाहर आ जाएगा. In this way, water is drawn up by repeated strokes of the piston. Water cannot be lifted more than a height of 1034 centimeters with this pump. Why? Because air pressure is equal to the pressure of 1034 centimeter height of water column. देखिए वाटर को हम ना इससे ज़्यादा हाइट के ऊपर लिफ्ट नहीं करा सकते इस पंप से. क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो इक्वल होता है टू द प्रेशर ऑफ 1035 centimeter height of water column. Number 5, siphon. Siphon is a tube of glass, rubber or plastic. It is used to transfer a liquid without tilting the container. Liquids like water or kerosene are transferred in this way. Liquid flows from a higher level to a lower level. देखिए साइफन आपका एक ट्यूब होता है या तो ग्लास का, रबर का या फिर प्लास्टिक का. तो इससे यूज़ किया जाता है लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट इसमें कंटेनर को ना टल्ट नहीं किया जाता है. तो जैसे वाटर है या कैरोसिन को ट्रांसफ़र किया जाता है इस तरह से. इसमें लिक्विड जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आपका फ्लो करता है. Experiment. Put the receiver vessel at a lower level than the container. Take a long rubber or plastic tube. Put one end of it in the vessel from which liquid is to be poured and hold the other end. Let the whole tube be immersed in the liquid. देखिए आपको क्या करना है, जो रिसीवर वेसल है उसको लोअर लेवल पे रखना है देन द कंटेनर. फिर आपको एक लॉन्ग रबर या प्लास्टिक की ट्यूब लेनी है. फिर आपने एक एंड जो है इसका आपने इसको वेसल में रखना है जिसमें से लिक्विड को पोर किया जाना है और दूसरों को होल्ड करके रखना है. फिर आप क्या करेंगे कि जो पूरी की पूरी ट्यूब है उसको आपको लिक्विड में इमर्ज करके रखना है. द लिक्विड comes up inside the tube at the other end. Close the other end with your thumb and finger tightly. Now take the end gently to the receiver vessel and remove the thumb. Air pressure acts on the surface of the liquid at a higher level and pushes it down through the siphon tube. To stop the flow, close and lift the other end higher than the upper level of the liquid. Remove the thumb to let the air pressure work and push the liquid down. Thus the tube is emptied. अब आपने क्या करना है, देखिए जो लिक्विड है वो इनसाइड आ जाएगा ट्यूब के एक दूसरे एंड पे, राइट. अब जो दूसरा एंड है आपका उसको आपने अपने थंब और फिंगर से टाइटली इसको क्लोज कर देना है. उसके बाद आपने इस एंड को जेंटली आपने क्या करना है, लेके जाना है रिसीवर वेसल तक एंड देन थंब को रिमूव करना है. फिर जो एयर प्रेशर है वो लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करेगा एट हायर लेवल पे एंड देन उसको पुश डाउन करेगा उस साइफन ट्यूब के थ्रू. अब आप चाहते हैं कि इस फ्लो को हम रोक दें तो क्या करेंगे, आप करेंगे क्लोज करेंगे और दूसरे एंड को आपने लिफ्ट करना है हायर देन द अपर लेवल ऑफ द लिक्विड. ओके, फिर आपने थंब को रिमूव करना है जिससे कि एयर प्रेशर वर्क करेगा एंड जो लिक्विड है वो पुश होके नीचे आएगा और इस तरह से जो पूरी ट्यूब है आपकी खाली हो जाएगी. ब्रीदिंग एंड बर्निंग. Breathing is a continuous process in living beings. They take oxygen from air and give out carbon dioxide. This exhaled air contains about 4.5% carbon dioxide in comparison to 0.03% in the inhaled air. Breathing or respiration slowly breaks down food in the living cells step by step to release energy for living activities. So this is the equation. Glucose plus oxygen, it gives energy plus water plus carbon dioxide. देखिए ब्रीदिंग आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. आप सोए हैं चाहे आप जगे हुए हैं, है ना, हर टाइम ब्रीदिंग आपका चल रहा होता है. इस पर आप ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. तो जो आपकी एक्सेल्ड एयर होती है उसमें आपका क्या होता है, 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो जो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन है वो स्लोली हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है लिविंग सेल्स में, स्टेप बाय स्टेप फिर एनर्जी आपकी रिलीज होती है. सो दिस इज द इक्वेशन. We can say that respiration is a slow burning process. The inhaled air has 21% oxygen and nearly 47% oxygen is used up in this process. Burning out in the opens use is up all the 21% oxygen in the air. This is nearly 1/5 part of the air by volume. तो देखिए रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं कि आपका स्लो बर्निंग प्रोसेस है. जो इनहेल्ड एयर होती है उसमें तो 21% ऑक्सीजन होती है एंड उसका नियरली 47% जो ऑक्सीजन है वो यूज़ अप हो जाता है इस प्रोसेस में. ओके, अब जो बर्निंग आउट है आपका, बर्निंग आउट इन ओपन में वो यूज़ करता है 21% ऑक्सीजन इन द एयर जो कि आपका 1/5 पार्ट है बाय वॉल्यूम. एक्सपेरिमेंट. टेक अ टब एंड पुट सम वाटर इन इट. पुट अप अ कैंडल ऑन अ वुड ब्लॉक एंड प्लेस इट इन द मिडल ऑफ द टब. Take a graduated jar, light the candle and keep the jar inverted over the candle. Note the water level in the jar. आपने एक टब लेना है, उसमें वाटर रखना है, फिर आपने एक कैंडल को रख देना है वुडन ब्लॉक पे एंड उसको टब के मिडल में रखना है. फिर आपने ग्रेजुएटेड जार लेना है, कैंडल को जलाना है एंड जार को फिर आपने इन्वर्ट कर देना है ओवर द कैंडल.
अब आप क्या करेंगे, वाटर लेवल को उसमें नोट करेंगे. After some time, the flame of the candle ceases to burn and water enters the jar, occupying 1/5 of its space. It means when a thing burns in air, 1/5 part of the air is used up for burning. कुछ टाइम के आप बाद देखेंगे जो फ्लेम है कैंडल की वो जलना बंद हो जाएगी और वाटर जार के अंदर एंटर करेगा, उसका 1/5 जो पार्ट है उस स्पेस का उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. इसका मतलब जब भी कोई चीज़ जलती है ना एयर में तो 1/5 पार्ट जो एयर का यूज़ हो जाता है वो बर्निंग. Forget me not. The gaseous envelope covering the earth is called the atmosphere. The atmosphere has 5 layers. All living beings and weather changes happen in the lower layer of troposphere only. Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, neon, argon and water vapor. Air occupies a space. It has weight and it exerts pressure in all directions. Remember that. The pressure of air pushes liquids to move in fountain pen, syringe, dropper, water pump and siphon. Respiration is a slow burning of food in the living cells. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.